Hello student, and last video we have done with the topic fertilization and fruit and its types. Now our next topic is seed. Okay, now what is a seed? Seed is a mature ovule. ठीक है, जो फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप्ड होता है, ओवरी मैच्योर होती है, चेंजेस इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल मैच्योर्स एंड चेंजेस इनटू अ सीड. ठीक है, सो सीड इज कॉल्ड अ मैच्योर ओव्यूल. ठीक है, जो ओव्यूल मैच्योर हो जाता है वो सीड में टर्न हो जाता है. नाउ सीड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज सीड कोट and the second part is embryo. Seed coat, it is the protective layer around the seed. जो बाहर outside layer होती है ये वाली, the layer around the seed, this is called as seed coat. Clear? And the embryo is present inside the seed coat. Embryo क्या है? It is a white fleshy part of the seed which is visible only and only when we remove the seed coat. Clear? So the embryo is the inner part of the seed. ठीक है, जो आगे डेवलप होता है into a new plant. कैसे? Embryo beta, it is further divided into three parts. First is cotyledons. Second is radicle. Third is plumule. Clear? Okay. So the what is the first part? That is the cotyledon. Cotyledon क्या है बेटा? This is the structure of seed. ये दोनों sides जब हम for example we take the example of gram और a pea. जब हम उसको open करते हैं, it's divided into two parts. ऐसे open होता है. So similarly this is that structure. Open structure है. So ये दोनों उसके क्या हुए? These two are the cotyledons. Clear? These two are the cotyledons of the seed. What are the cotyledons? This is the white fleshy part जिसके अंदर क्या होता है? Stored food होता है. ठीक है, इन अर्ली स्टेजेस सीड को स्टोर फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कॉटिलेडन. ठीक है, इसका जो ग्रोइंग है, ग्रोइंग की वजह क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ कॉटिलेडन. ठीक है, क्योंकि उसमें रिजर्व्ड फूड होता है, कंजर्व्ड फॉर्म में फूड होता है. क्लियर? ठीक है, सो मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द रेडिकल. रेडिकल क्या है? दिस इज द रेडिकल. ठीक है, दिस इज द रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड जो आफ्टर ग्रोथ ऑफ द सीड आफ्टर जर्मिनेशन रेडिकल डेवलप होता है. रेडिकल किस में डेवलप होता है? इनटू द रूट्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड. नीचे की तरफ डेवलप होता है, सीड के नीचे की तरफ ये ग्रो करता है. सो इट चेंजेस इनटू द रूट्स. क्लियर? सिमिलरली व्हाट आर द प्लूम्यूल? प्लूम्यूल क्या है? दिस पार्ट. The third part, plumule. Plumule turns into the shoot part of the plant. Shoot part grows upward. ठीक है, जहां से पूरा का पूरा आगे फर्दर प्लांट ग्रो करता है, लीव्स निकलते हैं, फ्लावर फ्रूट सब कुछ निकलता है. सबसे पहले क्या होता है वो अर्ली स्टेजेस में? दैट इज द प्लूम्यूल. ठीक है, सो प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू द शूट. इट ग्रोज अपवर्ड. So clear all of you? The seed has two main part, seed coat and embryo. ठीक है, embryo के भी आगे further three parts हैं. ठीक है,
One is cotyledon, second is radicle, and third one is plumule. Cotyledon, they store food for the plant seed, ठीक है? And cotyledon is also called as seed leaves. Cotyledon को और क्या कहते हैं? It is also called as seed leaves. Clear? Radicle, it grows towards downward and further changes into the roots of the plant. Clear? And plumule, it develops upward and it changes into the shoot part of the plant. Upper part को ये grow करवाता है. Is it clear? Okay. So our next topic is types of seed. Seeds are mainly of two types depending upon the number of cotyledons. Okay. If there are two number of cotyledons, then it is dicotyledon. If it is one, it has one number of cotyledon, then it is called as monocotyledon. Earlier, I have drawn the diagram of a seed that is of the dicotyledon plant. Okay. So here the two cotyledons, this is one, this is two. Two cotyledons are present. These are the cotyledons. In the case of dicotyledons, di means two, mono means one. Here they have two cotyledons. Cotyledon act as a food reservoir, source of food for the seed. Clear? And the layer around it is called as seed coat, जिसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है. ये एग्जाम्पल किसकी है? दिख रहा है हमको इजीली. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम. ठीक है. इन द केस ऑफ मोनोकॉटिलेडन, इसमें क्या है बेटा? दिस इज कॉटिलेडन बट इट इज ओनली वन इन नंबर. सिर्फ एक कॉटिलेडन है. ठीक है. बट ये अपना फूड, इट टेक देयर फूड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सीड, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म. ये अपना फूड कहां से ले रहे हैं? फ्रॉम द एंडोस्पर्म, मोनोकॉटिलेडन्स. क्लियर? डाइकोटिलेडन हैव टू cotyledons. ठीक है. इन द केस ऑफ dicotyledonous seed. In the case of monocotyledonous seeds, it has only one cotyledon and they take their food from the endosperm. That is the source of energy for them, endosperm. Clear? Here we are taking the example of gram. P हो सकता है. ठीक है. These are the some example of the dicotyledon. In the case of monocotyledon, we can take the example of rice, maize, or grass. Clear? ठीक है. Clear with this topic now? Now next topic is the subtopic, that is the significance of seed. What is the importance of seed? First importance है बेटा, it protects the embryo. The inner part, जो अंदर embryo होता है, cotyledons होते हैं, रेडिकल, प्लम्यूल, इन सबको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? सीड. सीड के अराउंड क्या है मेनली? दैट इज द सीड कोट. ठीक है. सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? इट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. Whole plant arises from a seed, single seed. Clear? The third is it acts as a source of energy. हम सीड्स को भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, हम ग्राम्स खाते हैं, पी खाते हैं ना. सो दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन और एनिमल. ठीक है बेटा. क्लियर नाउ? So moving to the next topic, that is the germination. Now what is the germination? It is the process by which seed grows into plant. All right. When the seed develops into, grows into a plant, the process is known as germination process. ठीक है. क्या होता है बेटा जर्मिनेशन में? जब उसको अप्रोप्रिएट वाटर मिलता है फ्रॉम द सॉइल, सीड को, इट स्टार्ट्स स्वेलिंग, स्वेल हो जाता है. आफ्टर सम टाइम उसमें से रेडिकल्स और प्लेम्यूल निकलते हैं. ठीक है. वो उतनी देर में अपना फूड कॉटिलेडन से ले रहे हैं और इसमें से क्या होता है? क्या ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं? प्लोम्यूल एंड रेडिकल. ठीक है.
Afterward, after growing, this radicle changes into the roots. It goes inside the soil, and plumule comes above the ground, so it develops into a shoot. Clear? So for the germination, there are the three important conditions required. ठीक है, essential three conditions हैं without which the germination is not possible. The first one is temperature. अब स्टूडेंट्स, जब तक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा सीड को, तब तक वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा. इट कैन ग्रो बियॉन्ड 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये वाइड टेम्परेचर रेंज है. अदरवाइज ऑप्टिमम रेंज इज 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वो इजिली ग्रो कर सकता है. बट जितना हाई टेम्परेचर होगा, उतनी ही rate of germination it would be more. Clear? So for the rapid germination, high temperature is required. Clear? Second है बेटा, it is the water. ठीक है, water is very very important, equally as temperature it is. Water क्या है बेटा? It helps to get swollen हो जाता है, सीड स्वेल हो जाता है. जितना उसको एप्रोप्रिएट वाटर चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट चाहिए सीड में, उससे वो क्या होता है, ग्रो करता है, स्वेल होता है, और बाहर रेडिकल्स और प्लम्यूल को ग्रो करने में हेल्प करता है. क्लियर? सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ड्राइड सीड होते हैं, ठीक है, उनमें एटलीस्ट 10 to 20% वाटर का कंटेंट होना चाहिए. बट वी रिक्वायर मोर देन दैट. एक सीड को 20% से भी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. अगर 10% से वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए अराउंड द सॉइल, जिस सॉइल में वो सीड डिप होता है, ठीक है, अगर उसमें नहीं उसको वाटर कंटेंट मिल रहा, तो इट विल नॉट ग्रो एट ऑल. Clear? This is the second essential condition required for the germination of seed. Now, the third one is air. Air में क्या required है उनको? The gases. So the germination requires the air, that is the gas oxygen. Clear? It is very important. It helps to break down the energy. ठीक है, the stored energy उसको break down करता है, so that कि जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, सीड का प्रोटोप्लाज्म है, वो ग्रो कर सके. ठीक है, so oxygen helps to break down of the energy. Clear? So it is also very very important for the germination process. Without these three factors, the germination is not possible. कोई भी एक मिस है. If water is not there, then the seed will not germinate. If air is not there, oxygen is not there, the seed will not germinate. Dormant हो जाता है, grow नहीं करता. ठीक है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. इट कम्स फ्रॉम द सनलाइट. ठीक है, और वाटर चाहिए, और साथ में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. Clear? In your book, there is a activity given at page number 19. It's very easy, and this is your homework. You have to do it at your home. क्या करना है बेटा? Take one scale. ठीक है, एक स्केल लो, एक बड़ा सा कुछ बीकर ले लो, जिसमें एक स्केल लो. ठीक है, स्केल के ऊपर 3 जगह पे कोई भी सीड्स को टाई कर दो विद द थ्रेड. ठीक है बेटा, और उसको डिप कर दो इन द वाटर. क्लियर? द फर्स्ट सीड, जो ऊपर सबसे ऊपर सीड है, वो बाहर ग्रो कर रहा है, इसमें वाटर नहीं डिप किया हुआ, इसको वाटर डिप. द लोअर सीड इज इमर्ज इन वाटर, एंड जो सेंटर वाला सीड है, द सेकेंड वन सीड इज पार्शली इमर्ज इन वाटर. प्रॉपर डिप नहीं है वो वाटर में. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू सी, which seed will grow?
कौन सा सीड ग्रो करेगा? यस, यू आर राइट, दिस सेकेंड वन, दिस विल ग्रो। आफ्टर 3-4 days जब आप ऑब्जर्व करोगे इसको, बट यू विल सी द नंबर सेकेंड सीड विल ग्रो। वाई? यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल लाइक राजमा, यू कैन टेक हियर। ठीक है, आप राजमा को बांध लो, पी को बांध लो। राजमा वुड बी इजी टू टाई। ठीक है, एक स्केल लेकर, रूलर लेकर उस पर टाई करके एक्सपेरिमेंट जरूर परफॉर्म करना। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई इट विल ग्रो। As it is getting water also, it is getting air also, it is getting sunlight temperature also. Clear? But in the case of this seed, the air is absent here. ठीक है, proper immersed है water में. In this case, the water is absent. So, वन कंडीशन दोनों में लैकिंग है, तो जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाता, और द ओनली द सेकेंड वन इट विल ग्रो। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है दिस एक्टिविटी एंड दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू दिस। ओके, इन योर नेक्स्ट डाउट क्लास, जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके सारे डाउट्स होंगे, मैंने आई विल टेक दैट डाउट्स, और उसमें मैंने ये देखना है कि तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है कि नहीं किया। Next topic is types of germination. Okay, the germination is of two types but depends upon the position of cotyledon. If the cotyledon is grows above the ground, ठीक है, वो above the ground grow कर रहा है soil के ऊपर, that is called as apigeal germination. If it is growing below the ground, inside the soil, that is called as hypogeal germination. ठीक है, these are the two types of germination, apigeal and hypogeal, depending upon कि उनके cotyledon की क्या position है. One is apigeal germination and one is hypogeal germination. Clear? एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है बेटा? उसमें दिस इज द सॉइल, ठीक है, इस सॉइल में से पहले क्या होता है, यहाँ सीड होता है, आफ्टर सम टाइम यहाँ होता है, देन इट कम्स आउटसाइड, जो इनके कॉटिलेडन्स होते हैं, दिस इज द कॉटिलेडन, जब इसमें से प्लांट ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इट ग्रोज इनटू अ फुल प्लांट। ठीक है, और इसके कॉटिलेडन्स अपने आप, जब इस पे लीव्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांट ग्रो करता है, वो अपने आप ड्राई होकर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इन द केस ऑफ एपिजियल जर्मिनेशन, जिसमें कॉटिलेडन कहाँ रहता है? अबव ग्राउंड। ठीक है, इट गोज अप द ग्राउंड एंड टर्न्स इनटू अ न्यू प्लांट। कॉटिलेडन्स फॉल ऑफ करके आगे फर्दर पार्ट्स उसके ग्रो करते रहते हैं, इन द केस ऑफ एपिजियल जर्मिनेशन। नाउ हाइपोजियल जर्मिनेशन, इट रिमेन्स बिलो द ग्राउंड। ठीक है, अंडर द सॉइल ग्रो करते हैं, वहीं से उसके रेडिकल और प्लोम्यूल ग्रो करता है, ये कॉटिलेडन नीचे लेता है, इसमें से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। क्लियर? सो इसमें रेडिकल और प्लोम्यूल नीचे ही सॉइल में से ही ग्रो करके बाहर निकलते हैं, जो प्लोम्यूल है उसमें से शूट पार्ट निकल के बाहर आता है, इन द केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन द केस ऑफ एपिजियल जर्मिनेशन, वो बाहर ही रेडिकल और प्लोम्यूल बाहर से ही ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, अब आउटसाइड द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। क्लियर? सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ द सनफ्लावर। सनफ्लावर किस जर्मिनेशन को फॉलो करता है? इट इज द एपिजियल जर्मिनेशन, और साथ में आपकी बुक में दिया हुआ इट इज बीन। इन दिस केस मेज, राइस, that follows the hypogeal germination. Clear all of you?